Good morning students. Today we are going to solve short answer type question of exercise of chapter 5, that is heat. So students, let us begin. Students, in the short answer type question of chapter 5, the very first question is, while laying the railway track, a small gap is left between the two successive length of rail. Why? सो स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछ रहा है कि जब हम रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो उसमें जो दो सक्सेसिव रेलवे ट्रैक्स हैं उनके बीच में गैप क्यों रखते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट्स आंसर इज़ दिस इज़ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. ये किस वजह से होता है? क्योंकि सॉलिड्स के केस में थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, मतलब जब उसको हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड करता है. ओके, एंड टू इट इज़ बेसिकली टू अलाउ द एक्सपेंशन इन द रेल्स मेड अप ऑफ सॉलिड स्टील. ओके. Now students, the second question is, why one end of the steel bridge rests freely on the rollers? Students, again there is the same reason, that is it is because of the thermal expansion of solid. Okay, the steel bridges also expand in summer, that means they get heat from the sun and expands. So therefore one end of the bridge is kept fixed, okay, while the other end rises freely on rollers, so that it may slide on the roller on expansion. Okay, now students, let's come to third question. Third question is, define melting point, write the melting point of ice. So students, defining melting point, earlier also I have told you melting point अगर हमें define करना है तो it is basically the temperature at which solid substance starts melt. melting point क्या होता है? ये वो temperature है जहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, मेल्ट होने लगता है इनटू लिक्विड सब्सटेंस. ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए बेसिकली आपको ये कन्वर्जन ध्यान में रखना है. अ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड सब्सटेंस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड द टेम्परेचर एट विच दिस मेल्टिंग टेक प्लेस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, वो टेम्परेचर स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. So students, you can see here we have taken the example that ice is converging into water. There is one more question here. Write the melting point of ice. हमें ice का melting point लिखना है. So students, the melting point of ice, sorry it is not given, it is basically 0 degree Celsius. Okay, in Fahrenheit it is 32 degree Fahrenheit. Now students, let's talk about the fourth question. Fourth question is, what is freezing point of a liquid? किसी liquid का freezing point क्या होता है? Basically freezing point is come in case of liquid, conversion of liquid to solid. जब हम liquid को solid में convert करते हैं तब हम freezing point का concept पढ़ते हैं. Basically students, आपको ये conversion ध्यान में रखना है that suppose there is a liquid and it is converting into solid. liquid suppose करिए हमने water लिया है और ये किस में convert हो रहा है? ice में. okay, सो स्टूडेंट्स, लिक्विड के आइस के कन्वर्जन के फेनोमेना को या किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के सॉलिड सब्सटेंस के कन्वर्जन के फेनोमेना को हम फ्रीजिंग कहते हैं, और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये कन्वर्जन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, सम टाइम फ्रीजिंग इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन. फ्रीजिंग को हम कभी कभी सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि लिक्विड किस में कन्वर्ट होने जा रहा है? सॉलिड में. इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन. सो हियर स्टूडेंट, यू कैन सी दैट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट्स solidify or fridge is called freezing point. Okay, now students, let's come to fifth question. Fifth question is, what is conduction of heat? So students, we have seen that transmission of heat take place through three ways. हमने देखा कि कैसे heat का transmission होता है, conduction के through, convection के through और radiation के through. So यहाँ पे हमें conduction को define करना है. So students, basically in conduction heat passes along a substance from द हॉटर एंड टू द कूलर एंड. ठीक है, अगर हम कंडक्शन की बात करें तो ये हॉटर एंड से कूलर एंड तक ट्रेवल करता है. बेसिकली सॉलिड सब्सटेंस में ये देखने को मिलता है. और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है. वो अपने ही पोजीशन पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं. दे वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशन. सो इसके लिए आप एग्जांपल सपोज कर सकते हैं स्टूडेंट. सपोज वी आर टेकिंग अ स्पून, हमने एक स्पून लिया है एंड वी आर अलाउड इट टू हीट. ओके, हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो हमारा हॉटर एंड है, यहाँ से
ये हीट ट्रांसफ़र होके कहाँ तक जाएगी, कूलर एंड तक. ओके, दिस इज़ व्हाट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन. ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट द 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन इज डिफाइन कन्वेक्शन ऑफ हीट. क्वेश्चन कह रहा है कन्वेक्शन ऑफ हीट को डिफाइन करिए. सो स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन. जब पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, सपोज करिए कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, और उसको हम एट अ पॉइंट क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसमें हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर इट इज़ लिक्विड वेदर इट इज़ गैस. तो उसमें क्या होगा, करंट्स का जनरेशन होगा. करंट दैट मीन्स इनमें जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा, इस तरह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे. दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. सो डिफाइनिंग कन्वेक्शन, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट का ट्रांसमिशन का प्रोसेस, प्रक्रिया, फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट, एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का ही एक्चुअल मूवमेंट है, इज कॉल्ड कन्वेक्शन. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह रखती हैं या चिमनीज़ जो किचन में रखती हैं वो इसी फेनोमेना पे वर्क करती हैं. चिमनीज़ में क्या होता है, जो हॉटर एयर है फिर वो क्या करती है, कूलर एयर जो पोर्शन है फिर वो वहाँ से वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाता है. मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनका ऐसे मूवमेंट होने लगता है. ठीक है, तो यहाँ से फ्रेश एयर अपना एंट्री लेती है और जो फाउल एयर है, अगर आप घर के वेंटिलेशन की बात करें तो वहाँ पे भी क्या होता है, यही मैकेनिज्म ऑकर होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ओके, थैंक यू class. Students, note down these questions in your notebook systematically, and if you are capable of drawing diagram, then you can draw here also in the very first question the diagram of the railway track, here also the diagram of the steel bridge, and in case of conduction you can draw the diagram of the transmission of heat from hotter end to cooler end, and in case of convection also you can draw the current generation. Okay, that is the movement of particles. You can show the movement of particle in any liquid or gases. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you class.